recording हो गया. Let us start today's class. Yes, sir. In the last class, I was discussing some definitions. So I explained convex set. Then I think I proved one theorem also, है ना? Yes, sir. So now let us take next thing. Just a minute. Yes. So in the last class, I explained you convex. One definition. It was a convex polyhedron, है ना? Convex polyhedron की definition दी थी. If you remember, what was that? एक definition बताई थी आपको. चलो मैं recall कर दे रहा हूँ. I'm just recalling it. So it was a convex polyhedron. Polyhedron. So you remember convex combinations, है ना? Combination, convex combination what? If you have a linear combination, but two restrictions are there on the scalar. What are the restrictions? Yeah. Yeah, the restrictions. Before that, no, I explained in the last class. Yes. So lambda should be between 0 to 1. And all lambdas should be equal to 1. Summation Equal of to all 1. lambda. sum equal to 1 and all lambda should be non-negative. है ना? Yes, sir. Two restrictions were there. So you have some vectors, so you can write lambda 1 x2 plus lambda 2 x2 and so on, plus lambda and xn. This is a linear combination. But now I am imposing two conditions. All lambdas should be non-negative and summation of lambda should equal to 1. This is called a convex combination. And I is running from 1 to n. This is your convex combination. So convex polyhedron is what? The set of all convex combinations of a finite number of Li vectors. ये तो बताया था convex polyhedron. The set of all convex combinations. I am just recalling this. I have already explained it in the last lecture. So I am continuing that. Convex combinations of a finite number of Li vectors. है ना? Vectors Li भी अगर हो जाए तो Li means you know if you have a combination is equal to 0, then all scalars equal to 0. 0. है ना? That is Li. You have studied in your linear algebra course. So this convex polyhedron. So you can see that this convex polyhedron is basically what? If you are writing the set of all convex combinations. Suppose I am taking 3 points. Suppose here. Suppose you have x1. एक triangle ले ले रहा हूँ मैं चलो. x1, x2, x3. So as I told you, if you take the convex combination of all these 3 points, basically it will give you what? It will give you the complete inner part also when you will solve it. है ना? देखो. Yes, sir. With convex combination, you will be taking this line as well as all the points. It will be coming in the interior region. You can verify it. You just take any, like suppose I am taking arbitrary 3 points. Suppose arbitrary 3 points ले रहा हूँ मैं. एक triangle बनाते हैं चलो. Suppose it is I am taking 1, 1. ये 1, 1 x-axis पे. Here I am moving in this way. So your y is fixed. Suppose it is I am taking 2, 1. And here suppose I am moving along y-axis. So your this is fixed. Suppose it is I am taking 2, 3. Suppose ये एक triangle है ना? You have 3 coordinates, 3 points A, B, C. So if you want to write a convex combination, so what is the convex combination of these points? You know, lambda 1, 1, 1 plus lambda 2, 2, 1 plus lambda 3, 2, 3. It is the convex combination, है ना? Where
Yes, sir. where lambda 1, lambda 2, lambda 3 they all are non-negative and their sum is what? 1. 1. ये है. अब आप देखो कि ये अगर आपका एक सेट बना रहा हूं मैं लैम्डा, तो ये क्या बनाएगा? देखो जरा इसको सॉल्व करो, ये कैसे पूरा ट्रायंगल कवर कर रहा है. देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे व्हाट विल बी कमिंग, इसको सॉल्व कर लो जरा. तो यू हैव बाय द कंपोनेंट वाइज lambda 1 plus 2 lambda 2 plus 2 lambda 3. तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज lambda 1 plus 2 lambda 2 plus 2 lambda 3, है ना. सेकंड पॉइंट इज Yes, lambda sir. 1 plus lambda 2 plus 3 lambda 3. ये तो पॉइंट्स आ गए. These are the points which are Yes, coming sir. here. अब now you see here कि ये पॉइंट्स क्या पूरा ट्रायंगल कवर कर रहे हैं? ये देखते हैं. ये जो ट्रायंगल आपका बना, सॉरी ये जो पेयर बने, अब इसमें मैं लैम्डास की वैल्यू वही रख सकता हूँ अंडर दिस कंडीशन. सो आई विल सी कि क्या ये जो सेट है ये क्या ये पूरा इंटीरियर ऑफ दिस ट्रायंगल इज गिवन. यू कैन सी. ये सपोज करो मैं फर्स्ट पॉइंट रखूं, मान लो आई एम टेकिंग. अब हमें ध्यान रखना है, हमें ऐसे पॉइंट रखने हैं कि सम शुड ऑलवेज 1. ओके. तो सपोज अगर मैं यहाँ पर lambda 2 lambda 3 को 0 कर दूंगा अगर, तो क्या बचेगा आपके पास? और lambda 1 को 1 लेना पड़ेगा, तो आपके पास क्या जाएगा? 1, Yes. 1 फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा. देखो है ना. अगर आप lambda 1 lambda 3 को 0 करेंगे तो lambda 2 कितना हो गया? 1. तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा. ऐसे ही अगर आप lambda 1 lambda 2 को 0 ले लेंगे तो lambda 3 विल बी 1. तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2, 3. ये तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए. बाकी पॉइंट्स की बात करें, सपोज आई एम टेकिंग arbitrary, suppose lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3, suppose 1/3 ले लिया, तो all are non-negative. Yes, and their sum is Yes, how sir. much? Sum is 1. तो अगर आपने ये पॉइंट रखा तो देखो ये पॉइंट कहाँ आएगा, जरा देखते हैं. लेट अस चेक. You will be solving 1/3 plus 2/3 plus 2/3. How much? 5/3. 1. 5/3. 5/3 आएगा ना. Yes, sir. Yes. यहाँ रखिए, देखिए 1/3 plus 1/3 plus 3/3. It is also ये 5/3. 5/3 पॉइंट जरा सोचो किधर होगा इसमें. तो 5/3 का मतलब कितना हो गया? 1.6. तो इधर चले x पे, है ना. और y कितना है कोऑर्डिनेट? 1.6. तो ये आपका y जो था 1 था, तो थोड़ा सा यहाँ कहीं आएगा ना पॉइंट. ये इट विल बी हियर समवेयर. देखो अंदर आएगा या बाहर आएगा? वेयर इट विल बी कमिंग? भाई 5/3 कितना हो गया? 5/3 मींस अप्रोक्सीमेटली 1.6 समथिंग. x पे हम चले तो बीच में आएगा ना, 2 है. 2x है. y को देखो ना. y अच्छा सर, x के, हाँ ठीक. तो यहाँ y पे आप 1 से ऊपर जाओगे थोड़ा सा, ये आएगा ना. तो मतलब द पॉइंट इज कि इट विल बी कमिंग इनसाइड. तो इस तरीके से आप lambda 1 lambda 2 lambda 3 की कोई भी चॉइस लेंगे, अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन ऑल द पॉइंट्स विल बी कमिंग इनसाइड. तो अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल फिल ऑल द रीजन. सारा रीजन अंदर का कवर हो जाएगा इस सेट से, है ना. बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन देयर सम इज 1. ये पॉइंट आपका कभी भी बाहर नहीं जाएगा, हमेशा ऑल द पॉइंट्स विल बी कमिंग इनसाइड. ओके. हियर यू कैन सी इफ आई एम टेकिंग अ पॉइंट हियर, तो ऑल द पॉइंट्स इनसाइड विल बी द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन. यहाँ पर कोई अगर पॉइंट में बाहर ले लूं, हियर आई एम टेकिंग सम पॉइंट सपोज D, तो D will not be a convex combination of these points 100%. D कभी भी नहीं आएगा. कोई पॉइंट आप बाहर का सोच लीजिए, जैसे आप कहेंगे साहब मैं लाओ यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, है ना. ये इसी के नीचे आ जाओ आप यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0.5. जैसे मैंने ये ले लिया, मान लो 1,0 इसके नीचे, ठीक Yes, है. sir. आप इसमें 1,0 कभी नहीं ला सकते. कोई भी चॉइस रख के देख लो, ये कभी भी 1,0 नहीं आएगा. लेकिन चॉइस आपको ऐसी लेनी है, ध्यान रखना है अंडर दीज रेस्ट्रिक्शंस, है ना. You have to tell सर कोई जनरल तरीका नहीं होता क्या सर कि ये जो कोऑर्डिनेट है lambda 1 plus 2 lambda 2 plus 2 lambda, ये पता चल जाए कि इसी के अंदर रहेगा? नहीं, ये अंदर ही रहेगा ना, क्योंकि आप इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं. ये मैं बता रहा हूँ. When you are taking lambda 1 lambda 2 under these restrictions, it will always come inside, है ना. ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल लेके बताया है कि if you will take any point, it will be coming inside. आप कोई भी ऐसा पॉइंट ले लें जो इस कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा हो, वो हमेशा बाहर ही आएगा. जैसे आप कहे साहब मैं 1 2 3 ले लूं, है ना. तो यू नो 1 2 3 में सम इज नॉट 1, उसे आप यहाँ पे पुट करके देखिए, तो पॉइंट हमेशा बाहर एग्जिस्ट करेगा, बाहर निकल जाएगा. ओके. सो दिस इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन. तो बेसिकली
कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस क्या बनाएंगे, आपके पूरे सेट को कवर कर लेंगे। ओके, इज इट क्लियर? यस सर, यस इसी सर। को पॉलीटॉप भी बोलते हैं, मैंने बताया था। इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीटॉप। तो यू कैन सी हियर कि दिस कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन और पॉलीटॉप है ना, दे आर ऑलवेज फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स सेट। देखो, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जब आप लेंगे तो क्या होगा, ये आपका पूरा सेट को बाउंड्री के साथ साथ इट विल बी टेकिंग द इंटीरियर रीजन आल्सो। तो यू कैन से कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है ना इज यस सर, ऑलवेज अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट। मतलब एक ऑब्वियस सी चीज आपके सामने आई है ना, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस यू कैन राइट दिस कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और पॉलीटॉप, कहीं कहीं पे इसे पॉलीटॉप भी लिखते हैं कुछ लोग, और पॉलीटॉप इज अ बाउंडेड पॉलीहेड्रन, बाउंडेड पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है ना, आपको पढ़ते हैं क्यूब, टेट्राहेड्रन, ऑक्टागन, ये सब होते हैं। तो कितने भी आप वर्टिसेस ले लेंगे उसी हिसाब से आपका हेड्रन बनता जाएगा। हेक्सागन है ना, डिपेंड करेगा पॉइंट्स क्या ले रहे हैं, पेंटागन, तो उसको हम जनरल क्या लिखते हैं, पॉलीहेड्रन है ना। 4 पॉइंट है तो आपका क्या होता है वो रेक्टेंगल, 5 पॉइंट लेंगे तो क्या बोलते हैं आप, पेंटागन, 6 पॉइंट इज Yes, sir. हेक्सागन है ना। Hexagon. यस तो इसको हम इन जनरल पॉलीहेड्रन लिख देते हैं, पॉलीहेड्रन। तो पॉलीहेड्रन डिपेंड करेगा हाउ मेनी वर्टिसेस यू आर टेकिंग। तो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और पॉलीटॉप इज अ बाउंडेड पॉलीहेड्रन एंड ऑलवेज फॉर्म अ कॉन्वेक्स सेट है ना। ये आपने भी वेरीफाई भी कर लिया 3 पॉइंट लेके, क्योंकि जब आप इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं तो वो सेट आपका कॉन्वेक्स बन जाता है, यू नो दिस थिंग। क्लियर है भाई? Yes, sir. यस सर। गुड। Next thing, next definition. There are four definitions, important definitions or optimization. Next is cone. Cone. Definition is what? You will understand by geometrically why it is saying it is cone. क्योंकि cone shape की कुछ figure आएगी. What is cone? A non-empty subset C, subset of Rn is called a cone. Is called a cone if for each u in C, कोई वेक्टर अगर हम u ले लें C में, u in C, lambda u implies that lambda u also belongs to C, where lambda is always non-negative. Okay, means if whenever u in C, lambda u in C, what does it mean? तो यू नो अगर कोई वेक्टर u है उस पर आप किसी नॉन नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, व्हाट इट विल डू विद द वेक्टर, बताइए भाई। लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे किसी वेक्टर में तो क्या करेगा, जैसे आपने कोई वेक्टर 2,1 लिया, अब लैम्डा आपने ले लिया मान लीजिए 3, क्या हो जाएगा वेक्टर ये लैम्डा इंटू 2 इंटू 1। 6, तो ये क्या करता है 6, बेसिकली, 3. ये वेक्टर को ही मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, वेक्टर को और एक्सटेंड कर देगा, बस शिफ्ट हो जाएगा है ना भाई। लैम्डा यू Yes, sir. मीन्स क्या हुआ कि इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर है ना। Yes, उसी sir. डायरेक्शन में आप आगे और बढ़ गए। जैसे यहाँ पे वेक्टर आपका अगर ये सपोज 2,1 था, तो आपने जब 3 से मल्टीप्लाई किया, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग विथ 3, दिस वेक्टर विल बी शिफ्टिंग इन द सेम डायरेक्शन 6, 3 6,3 आ गया ना। तो जब आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर को शिफ्ट कर देता है इन द सेम डायरेक्शन, इट विल नॉट चेंज द डायरेक्शन। और लैम्डा का 0 है तो 0 का मतलब क्या, अगर 0 लूंगा तो ओरिजिन से भी ले, इसको ओरिजिन पे भी ला सकता है ये है ना। तो कोई भी आप वेक्टर ले लें, जैसे मैं सपोज ये ले रहा हूँ आपका, तो कोई भी अगर आप वेक्टर लेंगे
तो कौन ये क्या करेगा लैम्डा यू, व्हाट इट विल बी डूइंग विद वेक्टर, it will take a line to the origin and like this, ये तो करेगा। कोई वेक्टर आप ले ले, तो यहाँ पर आप कहीं भी वेक्टर ले लीजिए, you take a vector, so lambda u will be what, lambda u will become a ray actually starting from the origin going like this, यही तो होगा। So if you see it will look like a cone, क्योंकि सारे के सारे all the vectors will be looking like it is merging to converging to zero, origin. है ना। So the figure will look like what, cone, Rays. है ना, कोन लगेगा ना इस तरीके से, ये कोन की फिगर होती है। यस सर। जैसे आपका कोन का एग्जांपल क्या है, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज अ कोन, you take any vector here multiply by lambda where lambda is positive, this vector will be always in C। अगर मैं C को, है ना, for a moment suppose I am taking your first quadrant, so first quadrant in R2 is a cone or not, Yes sir. is a cone, कौन है ना। आप फिगर देख सकते हो, ये कोन की फिगर, तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कोन बन जाएगा। बाय दिस डेफिनेशन टेक एनी वेक्टर फ्रॉम सी, सी का मतलब नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट, लैम्डा यू विल बी कमिंग इन सी। सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इवन थर्ड क्वाड्रेंट, एवरी क्वाड्रेंट इज अ कोन बिकॉज लैम्डा इज पॉजिटिव, तो इट विल नॉट चेंज द साइन, थर्ड क्वाड्रेंट इज आल्सो कोन। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, यू विल बी हैविंग नेगेटिव वेक्टर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, इट विल बी अगेन अ नेगेटिव वेक्टर, है ना। in third quadrant में ले सकते हैं any vector minus a comma minus b where a b positive, they belongs to this third quadrant। so if you will take the product with any non-negative, it will again belonging to same third quadrant, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट को आप उस टर्म में लिख सकते हो। So this is also a cone. In fact, all the 4 quadrants are cone. Is it clear? Yes, sir. So by this definition, you can understand. And what about convex cone? Convex cone. If a set is convex also, है ना? Here I am not imposing the restriction of convexity on the set. So I am saying simply it's a cone. But if I am taking the set should be convex also, then the cone will become a convex cone. Okay? है ना? If the set C subset of Rn is convex, है ना? Then the cone means satisfying this property. Then the cone becomes convex cone. Convex cone. It means for checking convex cone, you have to check these two things now. One thing is that set should be convex. Second thing that it should satisfy this cone property. So now tell me this first quadrant, is it a cone or is it a convex cone? Convex cone. Convex cone. Third quadrant is a cone or convex cone? Convex cone. Acha. What about union of first quadrant and third quadrant? No sir, only cone. है ना? The union of first and third quadrant is a cone but not convex cone. Convex cone. Why? Why? Because we can find 2 points so that their line segment will not lie in between first quadrant and third quadrant. Yes. So if you will see, they will be satisfying cone property. Because whenever you are taking 2 points, either they will be in first quadrant or third quadrant. यही तो होगा. So if they are in first quadrant, you will take lambda u, it will be in first quadrant. If you are getting negative, let me plot it in here. Suppose I am taking this is your this, है ना? So this is your first quadrant, okay? And suppose I am taking different. This is your third quadrant.
So you know it is a cone. No doubt it is a cone. You can check it. If you will take here u belongs to C, lambda u belongs to C. Either they will be positive, they will be negative. But it is not convex because this union of these two, it is not a convex set. You can take 1 point here, 1 point here, join by a line segment. Line segment is coming in the fourth quadrant, so it is not coming in the set. So this set is not convex. So union of this is not convex. You can write because union of this, because this is not a convex set. This is not a convex set. Okay, so it is a cone but not convex cone. Is it clear? Yes, sir. Good. Abhilash, Yes, sir. clear है ये? Yes, sir. Clear है. Kumbar Ali, Yes, sir. All clear. your name is Kumbar Ali या Kamar Ali? कुंबर अली नेम है आपका, कमर अली नाम है? आवाज नहीं आ रही? चलिए, आ रही सर, आपकी आवाज आ रही. अच्छा चलो ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉन्वेक्स हल, है ना? वन मोर डेफिनेशन आई थिंक, यस, कॉन्वेक्स हल. कॉन्वेक्स हल, ओके. अब यहाँ हल मीन्स इट इज नॉट लाइक यू विल बी थिंक द फिगर विल बी लाइक हल शेप, है ना? क्योंकि हल इज अ Yes, sir. हिंदी वर्ड, कोन इज अ इंग्लिश वर्ड, तो इट वाज लुकिंग लाइक कोन. बट हल का मतलब ये मत सोचना कि वो हिंदी वाले हल शेप में दिखेगा. So convex hull is what? Suppose we have a subset. Let some X subset of Rn. I am taking some set X subset of Rn. I am using your book notation actually. Then the smallest convex set containing X is called the convex hull of Y. Convex hull of Y, and denoted by this symbol, spanning symbol है. This is the symbol spanning Y. ये generated by Y. You have used in group. In group you have studied cyclic. अभी नहीं, cyclic तक पहुंच गए आप लोग? Yes, sir. फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा दिया गया. हाँ, फिफ्थ, ओके. तो cyclic group में क्या होता है? How to check a group is cyclic? Sir, if there is a generator which generates whole group, then it is called. Then it will be cyclic. So what is the symbol of that generator? Generator को कैसे लिखते हैं? If you remember, we write in this way, है ना? Yes, sir. ये इसका सिंबल होता है. जैसे Z5 अगर साइक्लिक है तो Z5 के आप जनरेटर निकाल सकते हैं. जो आपके को प्राइम होंगे 2 है, 2 जनरेटर हो जाएगा. तो आई कैन राइट 2 will generate. So here this is the symbol, actually same symbol they are using. It means what? This Y will generate the whole convex set, and it is a symbol of generator. So it is called convex hull. So what is saying? The smallest convex set containing the set X. You know, smallest convex set. The example will explain it more clearly. Suppose I am taking X is a circle. Suppose X is a circle. Okay. So this is your circle. Okay. Now. Yes, sir. X is a circle, and we know that circle is not a Convex set. Yes, circle is not a convex set, we know. Definition says the smallest convex set containing X.
Now you construct the smallest convex set which contain this x. क्या smallest set बन सकता है जो इस x को contain करता हो? बताओ। सर खुद यही है सेट। नहीं, ये तो कॉन्वेक्स नहीं है। स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट। हाँ, क्लोज डिस्क आएगी सर। सर Yes. इसी रेडियस का क्लोज डिस्क। यस एग्जैक्टली। अगर मैं इसको डिस्क बना दूं तो ये आपका कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा और ये स्मॉलेस्ट होगा, है ना? यस सर। वैसे तो अगर मैं बाहर का हिस्सा ले लूं कंटेनिंग द बाउंड्री तो भी कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा, लेकिन वो जो एक्सटीरियर पार्ट होगा वो स्मॉलेस्ट नहीं होगा, वो तो बिगेस्ट हो जाएगा, है ना? तो स्मॉलेस्ट कौन सा आएगा? जो इसके अंदर, दिस इज द स्मॉलेस्ट थिंग containing inside interior the region. Is it clear? So we have to see Yes, the sir. smallest convex set containing the set S. इसको अगर मैं for example suppose I am taking it here, you have some, it is plane, है ना? And I am taking now, I am plotting again this circle. So we know circle is not convex, है ना? क्योंकि line segment अगर हम लेंगे it will not coming. तो smallest कौन सा आता है? We know कि line segments will be coming inside and this inside is blank. तो इसको if I am filling something तो it will become convex. So disk, so basically what? Disk is the convex hull for the circle. You can say here disk is the convex hull for the circle. है ना? Suppose I am taking this figure now. Suppose this is the figure inside. Is it convex set? नो सर। कैसे बनाए ऐसे convex? सेमी सर्किल डिस्क बना दो। इसको इंक्लूड दिस बाउंड्रीज आल्सो, इसको इंक्लूड कर दो, है ना? अगर मैं यस सर। आई एम इंक्लूडिंग दिस थिंग, अगर इसको हम और इंक्लूड कर देंगे तो ये कॉन्वेक्स हल बन जाएगा। तो आपको कॉन्वेक्स हल बनाने के लिए बस क्या करना होगा, वो पोर्शन जो उसको नॉन कॉन्वेक्स बना रहा है उसे इंक्लूड कर दो, और वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि साहब मैं इसके लिए और बड़ा ले लेता, मैं बड़ा भी ले सकता था कि मैं यहाँ तक ले लूँ, लेकिन आई वांट द स्मॉलेस्ट विच इज कंटेनिंग। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? सिर्फ ये वाला। इज इट क्लियर? सो आई विल नॉट टेक दिस बिगर थिंग, है ना? द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट। तो व्हेन यू विल सी, व्हेनेवर यू विल हैविंग सम फिगर ज्योमेट्रिकली, यू कैन अंडरस्टैंड कि जो आपके पास इंटीरियर पोर्शन है अगर हम उसे कवर कर ले तो वो कॉन्वेक्स हल बन जाएगा, है ना? यही डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग एक्स, इसीलिए हम कहते हैं, है ना? अच्छा, अगर सेट ही हमारा मान लो कॉन्वेक्स हो जाए तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन देन? सपोज आई एम टेकिंग ऑलरेडी अ डिस्क, नाउ द सेट इज अ डिस्क, सपोज नाउ सपोज x is a disk, then what is the convex hull of x? बताइए। if x खुद is a, डिस्क हो जाएगी। खुद डिस्क हो जाएगी, एग्जैक्टली सही बात कही, बिल्कुल, है ना? क्योंकि अगर सेट कॉन्वेक्स है तो फिर स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग क्या होगी डेफिनेशन? फिर स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग एक्स क्या हो जाएगा? द सेट इज इटसेल्फ, है कि नहीं है? यस सर। है ना? तो इट इज ऑब्वियस, यू कैन राइट इट इज ऑब्वियस। ये ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल। इट इज ऑब्वियस दैट if x is convex set, then convex hull of x is nothing but the set itself, है ना? क्योंकि अगर खुद ही कॉन्वेक्स है तो स्मॉलेस्ट क्या होता है? द सेट itself is the smallest. Okay, यस सर। definition is clear? यस सर, क्लियर। अच्छा, ये बताओ जो कॉन्वेक्स हल की मैंने डेफिनेशन दी है अभी आपको, और द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स हल एंड द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन में भी तो मैंने ये बताया था अभी आपको इन द वेरी फर्स्ट पेज, ये तो था, यस यस सर। सर। है ना? इट मींस व्हाट कि कॉन्वेक्स हल एक्चुअली इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, क्योंकि व्हेन यू आर फिलिंग द इनसाइड थिंग इट मींस यू आर टेकिंग ऑल द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, यस है सर। ना? बिकॉज द सेम थिंग, यही हम कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन में कर रहे थे। सो इट इज अ थ्योरम एक्चुअली,
It is your theorem, page number 14 पे. You have Xerox already. If A is any finite subset of vectors in Rn, then the convex hull of A is the set of all convex combinations of vectors in A. Is it clear? है ना? Convex hull is nothing but it is the set of all convex combinations of vectors in A. Same thing है देखो. When you are taking the whole disk, it means nothing. You are taking all the convex combination. Okay? Yeah. Yes sir. जैसे मैं ये फिगर और बना दूं, मान लो this type figure. So here, है ना? And it is solid figure. So we know this set is not convex hull. अब मैं if I want to take all the convex combination, तो आप convex combination में इस point को भी मिलाएंगे यहाँ पे, ये तो convex combination आएगा. And when you will take this point, तो you have to take inside region also, ये सारा लेना पड़ेगा. तो ये क्या होगा ultimately? Convex hull बन गया. Okay? So in this way you can construct your convex hull. एक थ्योरम थी, इसका प्रूफ आपके उसमें दे रखा बुक में. यू कैन सी द प्रूफ. आई हैव इंक्लूडेड ओनली स्टेटमेंट. वन लास्ट थिंग ऑफ दिस सिंप्लेक्स, एक और डेफिनेशन है सिंप्लेक्स. सर कॉन्वेक्स हल तो बचा हुआ पार्ट होता है ना? बचा हुआ पार्ट क्यों होता? बचा हुआ मींस व्हाट? जो सर मतलब कि जो इंक्लूड नहीं है. नहीं, जो इंक्लूड नहीं है, विच इज इंक्लूडिंग द सेट. इंक्लूड नहीं है द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट कंटेनिंग एक्स. एक्स को कंटेन करता हुआ, है ना? अच्छा, डेफिनेशन क्या है? एक्स को कंटेन करने वाला. बचा हुआ तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर तो. बचे हुए में तो आप सर्किल को हटा दो, फिर तो पूरा आपका R2 इज द रिमेनिंग पार्ट. तो बचा हुआ जो ये वाला डायग्राम आपने बनाया है, जिस ये वाला सेकंड वाला, नहीं इसके बगल वाला, ये हाँ, इसमें से ये पिंक वाला जो पार्ट है यही होगा ना कॉन्वेक्स हल? नहीं, पूरा, क्योंकि ये पार्ट भी तो लेना है आपको भाई. पूरा सेट तो आपके पास ये था. तो यू आर हैविंग दिस वाज द सेट एक्चुअली. ये एक सेट था, तो आपको इस सेट को तो इंक्लूड करना ही है. कंटेनिंग दिस इज द सेट. ये जो मैंने बनाई फिगर, ये आपका सपोज एक्स है. सो दिस इज एक्स. So you want a region which is containing this x and it should be smallest. तो क्या करेंगे? You will have to join this with this. अब ये पूरा region आ गया. Okay sir. है ना? कि containing x, the part is containing x. तो अब this whole thing is a convex hull. Okay? Yes sir. Yes sir. Yes. So last definition, because less than a minute, I will finish the lecture. In the next lecture, I will start your new topic, simplex method and basic solutions. Simplex is simple. A simplex in n dimension. In n dimension is a convex polyhedron. Convex